چلتے ہیں اس وقت اوٹوا لے کر کے جائیں گے اور اوٹوا سے ہمارے جناب امبیسڈر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کو میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں جناب محمد سلیم صاحب. سر السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام. آئی ایم فائن, تھینک یو. سر بہت شکریہ. سب سے پہلے دس از یور اون چینل, آپ کا اپنا چینل ہے, اینڈ وی آل ایز اے پاکستانی ٹیک دا پرائڈ. آئی تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی thank your staff to bring you on board on WTOR 770 AM. It's a frequency which belongs to the South Asian community from morning till evening, and we are 24 hours on the internet. Thank you very much. میں جناب محمد سلیم صاحب کے بارے میں ونڈرفل مین, اور ظاہر ہے بعض اوقات نیٹ ورکنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, ہم کو بہت ضرورت ہوتی ہے نیٹ ورکنگ کی, جس میں میں اس اسٹاف ممبرس کو لازمی طور پر کمپلیمنٹ کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی کابینہ آپ کو کامیاب کرتی ہے, جو ان کے ساتھ منسلک اسٹاف ہے. کہ سنس جناب محمد سلیم صاحب تشریف لائے ہیں ایز این امبیسڈر, جتنی کارکردگی یا جس طرح سے وہ نیٹ ورکنگ فار دا سیک آف پاکستان کر رہے ہیں, اس سے تمام میڈیا کو باخبر رکھنے میں ان کی کابینہ یا ان کے دفتر کے افراد جو ہیں اپنا بہترین رول پلے کر رہے ہیں. محمد سلیم صاحب, انہوں نے فارن سروسز 1995 میں جوائن کی تھیں. اراؤنڈ 25 پلس ایئرس کا ان کا ایکسپیرینس ہے. ویریس پوزیشنز کے اوپر آپ نے کام کیا, فارن افیئرز میں اسلام آباد, پاکستان ڈپلومیٹک مشنز ابراڈ, جس میں جرمنی میں بھی آپ نے کام کیا, بحرین میں آپ نے کام کیا, رومانیہ میں, اور پھر کینیڈا میں. سر سب سے پہلے تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کی سپرویژن میں اور آپ کی موجودگی میں جو ہمارا کونسلیٹس ہیں یا جو ہماری ایمبیسی ہے, جو سروسز بیرون ملک پاکستانیوں کو فراہم کر رہے ہیں, میں آپ کو اس کے لیے مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں. اور اس وقت ہم سٹارٹ کریں گے کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کے حوالے سے ہم سٹارٹ کریں گے, اور اس کے بعد میری خواہش ہوگی, میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پلیز وہ سروسز جو پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور جیسے آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ٹو آل دا پاکستانیز, اس کے بارے میں بھی ضرور بات کیجیے گا. سب سے پہلے بات ہو جائے سر کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کے حوالے سے, اور یہ ایک عرصے سے منایا جا رہا ہے. جماعت اسلامی سے قاضی صاحب نے شروع کیا تھا, اور پھر مختلف ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے بھی, کشمیر جو کہ جموں کشمیر کے رہنے والے لوگ جو کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کی ہر سطح کے اوپر, ہر لیول پہ ان کی پذیرائی بھی کی جاتی ہے. سر تھوڑا سا پلیز بات کیجئے کشمیر سولیڈیرٹی ڈے پہ, اور پھر ہم کونسلیٹ کی جانب اور امبیسی کی طرف آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ میڈم عارفہ مظفر صاحبہ. سب سے پہلے میں اس اپارچونیٹی دینے پہ آپ کی ٹیم کی آواز ٹی وی اور ریڈیو 770 اور ٹی وی اور آپ کی تمام ٹیم اینڈ ٹیکنیکل سپورٹ ٹیم سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آن لائن لیا, اور انشاءاللہ یہ رابطہ ہمارا رہے گا. سیکنڈ, آج ہے 10 فروری. لاسٹ ویک 5 فروری کو ہم نے کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کی تقریبات اکراس کینیڈا ہوئی. آپ نے کہا کہ یہ 1990 کی دہائی میں یہ شروع ہوا تھا. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک تاریخ ہے. یہ کشمیر کا جو تنازع ہے یہ 1947 سے انڈیا اور پاکستان کے مابین مقبوضہ کشمیر کے پرامن حل تک یہ مسئلہ جاری ہے, اور ابھی 78 سال ہو گئے پاکستان اور انڈیا کو آزاد ہوئے ہوئے. اور اس کے اوپر 1949 کی اور 1948 دسمبر کی قراردادیں ہیں. کل 13 قراردادیں ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی, جس میں کہ پرامن کشمیر تنازع کا حل دیا ہوا ہے کہ اس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادیں اور مقبوضہ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے عوام کی جو حق رائے دہی ہے, ان کا جو بیسک رائٹ فار سیلف ڈٹرمنیشن ہے, وہ پیسفل یوز آف دیٹ بیسک رائٹ کے تھرو اس کا حل ہونا چاہیے. اور 1990 کے آس پاس 2 سال پہلے سے آپ دیکھیں تو کشمیر میں باقاعدہ انڈین فورسز کی بروٹل یوز آف انڈین فورسز اگینسٹ انوسینٹ کشمیریز ان دا ویلی. تو وہاں سے پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ سولیڈیرٹی ڈے تب سے ہو رہا ہے, اس کو 35 سال ہو گئے.
बेसिकली सॉलिडरिटी डे का मकसद ये है कि कश्मीर के तनाज़े को दुनिया के बाकी हर तरफ मसाइल की तरह, जिस तरह फ़लस्तीन का इशू है, इस तरह इस मसले का पुरअमन देरपा हल जब तक नहीं होता तो साउथ एशिया में अमन नहीं आएगा। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब रहेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आवाम, कश्मीरी अवाम और दुनिया भर में जितना भी पाकिस्तानी डायस्पोरा और जितने भी पुरअमन लोग हैं, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और ऑल दोज पीपल हु वांट के दुनिया में अमन हो, उन सब के ये सपोर्ट है कश्मीर काज को कि दिस dispute has to be resolved through peaceful means by implementation of the outstanding UN Security Council resolutions and with the free will of the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir कि वो अपने हक राय दही के जरिए वो फैसला करें कि whether they want to stay with India or they want to be with Pakistan. तो पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अवाम की कश्मीर काज के साथ जो सॉलिडरिटी है वो 78 साल से है और जब तक ये मसला हल नहीं होता ये रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, हमारे जनाब एम्बेसडर साहब ओटावा से हमारे साथ शामिल हैं। कश्मीर सॉलिडरिटी डे के हवाले से आप लोगों ने बातचीत सुनी और यकीनन पाकिस्तान बिल्कुल कश्मीरियों के साथ है उनके हक़ राय दही के इस्तेमाल में। सर once again 770 AM E-Awaz is pride of our community and we represent our country. मुझे बताइएगा कि आप जब तशरीफ़ लाए हैं और मुझे पता चला है कि बहुत सारी तब्दीलियां भी ऑन द वे हैं, तो कुछ उनके बारे में या पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क हैं उनके बारे में जो सर्विसेज हैं उसके बारे में भी अगर हमें आगाह कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखें, कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है, एरिया वाइज दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और उसी हिसाब से हुकूमत पाकिस्तान के 3 काउंसलेट्स हैं, वैंकूवर में, टोरंटो में, मॉन्ट्रियल में और हाई कमीशन ओटावा में। इसके बावजूद भी मुझे बखूबी इल्म है कि जो लोग हैलिफैक्स में हैं या अल्बर्टा और मैनिटोबा सस्कैचुअन के जो सूबों में लोग रहते हैं या नॉर्थ वेस्ट में जो टेरिटरीज हैं 3, वहाँ से अगर किसी ने पासपोर्ट बनवाना है या किसी काउंसलेट में जाना है तो उस फैमिली के लिए ये बड़ा महंगा काम बन जाता है। जो सर्विसेज इस वक्त हैं सारी ऑनलाइन है। पासपोर्ट आपका ऑनलाइन बन सकता है, रिन्यूअल आपके आईडी कार्ड जो नादरा कार्ड जो हैं वो अगर आपके एक्सपायर हो गए वो ऑनलाइन रिन्यूअल है। आपकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, अगर आपने पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी या कोई और बैंकिंग या कोई भी ट्रांजैक्शन किसी को वहाँ पे इख्तियार देना है तो उसके लिए अगेन ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी है, अटेस्टेशन जिसको हम कहते हैं। और इसके अलावा सिर्फ अगर किसी बंदे ने फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बनवाना है या फर्स्ट टाइम फिंगरप्रिंट देने हैं, किसी न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसका डेटा कैप्चर होना है कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसके लिए काउंसलेट या सिफारत खाने में आना पड़ता है। अदरवाइज अटेस्टेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी से लेके नादरा कार्ड, पासपोर्ट्स, ऑल ऑफ देम आर ऑनलाइन। बहुत शुक्रिया। इस वक्त तमाम की तमाम सर्विसेज ऑनलाइन है। सर मेरी एक उल्टा सा सवाल भी मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं बड़ा कमज़ोर और नालायक सा इंसान हूँ। उम्र के जिस हिस्से में हूँ हम में से बहुत से लोग उतने टेक सेवी हैं नहीं और बाज़ औक़ात नादरा के लिहाज से ही अगर हमने अपना नाइकॉप बनवाना है तो पेपर साइन करना, ये वो करना, अंगूठा लगाना, 5 चीज़ें। हालांकि मैं नादरा की वेबसाइट से मैंने ख़ुद काम करवाया। दे मेक थिंग्स वेरी इजी और ऑलवेज चैट इज़ ऑलवेज अवेलेबल। पाकिस्तान नादरा को आप डायरेक्टली करते हैं तो बहुत से लोग कनाडा में रहते हुए भी हम बच्चों के मरहून मिन्नत होते हैं, वी आर नॉट वेरी टेक सेवी। तो वहाँ आप क्या फरमाएंगे? एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, मगर बहुत से सीनियर्स ऐसे भी हैं जो आज मेरे साथ भी एक बैठे हुए हैं जो अलिफ का नाम कोको टेक्नोलॉजी के लिहाज से नहीं जानते, उनके लिए क्या गाइडेंस है? देखें, उनके लिए गाइडेंस ये है कि जहाँ पे ज़्यादा कम्युनिटी हो, फॉर एग्जांपल अगर लंदन ओंटारियो में या सेंट कैथरीन में या
नियाग्रा फॉल के पास और वो लोग above 70 है, they cannot go to the consulate जी सर. या हैलिफैक्स या प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में या ननोवेट में, तो हमारे जो काउंसलेट्स हैं उनकी टीमें दे कैन विजिट, दे हैव द पोर्टेबल इक्विपमेंट विद देम. और वो मैं काउंसिल जनरल साहिबान से भी बात करूंगा कि जहाँ पे ऐसा बंदा हो, जिस तरह एम्बुलेंस सर्विस है, गॉड फॉरबिड किसी बंदे को ऐसी मोबिलिटी का इशू है या एज का इशू है, तो they can reach out to them. What a great idea sir, what a great idea, thank you very kindly. एक और चीज़ सर आप से मेरी दरख्वास्त है, और मैं तो दरख्वास्त ही कर सकती हूँ कि आप अपनी काउंसलेट्स को इस बात के लिए भी पाबंद करें कि वो हमारे पाकिस्तानी ना बाज़ औक़ात एक नमाज़ पढ़ने जाते हैं और रेगुलर नमाज़ पढ़ते हैं, जुमे की नमाज़, फिर वो कहते हैं पूरी कम्युनिटी जान गई, फिर वो इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं और फिर वो हार जाते हैं, क्योंकि मस्जिद वालों में तो सिर्फ वोट नहीं देने, वोट तो कनाडा में रहते सबको देने होंगे. तो उनसे कहें कि अगर आपका अपना मीडिया है तो आप कम से कम जो सहूलियात हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करते हुए अपने आम लोगों तक रसाई ज़रूर हासिल करें. आप जैसे you as an ambassador of Pakistan, you took time, you spared your time और आपने पाकिस्तान की कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं. ये तरीक़ेकार से लोगों के साथ एक इंटरेक्शन ज़रूर रखें. ये मैं आपकी तवस्सुत से एक फरमाइश कर रही हूँ, एंड होप इट विल बी फुलफिल्ड. एग्जैक्टली देखें, हमारे एथनिक मीडिया जिसको आप कहते हैं, ये वैंकूवर में भी है. जी सर. टोरंटो में बहुत ज़्यादा है. जी सर. इसके अलावा मॉन्ट्रियल में रिलेटिवली कम है, लेकिन मॉन्ट्रियल और टोरंटो का फासला कम है. तो जो कुछ आपके नंबर ऑफ एथनिक मीडिया चैनल्स हैं, स्काइप, यूट्यूब या ऑनलाइन जितने भी चैनल्स हैं, कुछ के प्रिंट और अखबार भी हैं, कुछ का प्रॉपर टीवी चैनल है, ये जो मीडिया है इसके थ्रू काउंसलेट्स और सफारतखाना या हाई कमीशन हम आपसे मुसलसल राब्ते में रहेंगे. इसके अलावा यह है कि तमाम हमारे जो काउंसलेट्स और हाई कमीशन के अपने फेसबुक पेज हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है जिसको एक्स कहते हैं अभी. जी सर. एक्स हैंडल है. इसके अलावा हमारे फेसबुक और वेबसाइट्स हैं. तो मेरी कम्युनिटी से ये भी गुजारिश है आपके चैनल के तवस्सुत से कि वो उनको फॉलो करें. फॉलो से मुराद ये है कि उस पर कोई प्रेस रिलीज आ सकती है, उस पर कोई नया रोशन डिजिटल अकाउंट जिस तरह था, या कोई और मेजर पॉलिसी अपग्रेडेशन होती है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायस्पोरा रिलेटेड, तो लोगों को उस फेसबुक पेज और उस वेबसाइट को फॉलो करने से दे विल कम टू नो. सिमिलरली नादरा के जो अगर कोई तब्दीली होती है या मशीन रीडेबल पासपोर्ट के रूल्स रेगुलेशंस में या ऑनलाइन वीज़ा पाकिस्तान के लिए, कुछ लोगों ने सिर्फ कैनेडियन पासपोर्ट रखा हुआ है, तो दे हैव टू हैव अ वीज़ा टू गो टू पाकिस्तान. तो ये सारी चीज़ें उसको फॉलो करने का एक तरीका ये है कि काउंसलेट्स और हाई कमीशन एथनिक मीडिया चैनल्स के साथ अपना राब्ता मज़ीद बेहतर करे, वन. और कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो एथनिक मीडिया चैनल्स के अलावा जो सिफारतखाना और काउंसलेट्स हैं उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी फॉलो करें. बहुत कमाल की आपने बात कही कि हर इंसान अपने फ़ोन पे, ऑफ कोर्स हमारी एम्बेसीज़ को, हमारे काउंसलेट्स को आप सोशल मीडिया पे फॉलो करें तो कोई भी नई अपडेट जो होगी वो आप तक पहुंच जाया करेगी तमाम के तमाम लोगों से. मैं सर एक सवाल जो करना चाहती हूँ, आपने भी ये कहा, एंड दिस इज़ वेरी गुड कि एवरीथिंग इज़ टेक्निकल हो गई है और लोग टेक्निकली अपना ऑनलाइन अपना वीज़ा, अपने नाइकॉप्स एंड मुख्तलिफ अटेस्टेशंस के लिए ऑनलाइन जा सकते हैं. मैं जैसे सर नादरा के बारे में तज़किरा कर रही थी कि नादरा में जब आप करते हैं तो हम टेलीग्राम के ज़रिए उनसे बात भी कर रहे होते हैं, वो हमको एक एक स्टेप पे गाइड कर रहे होते हैं. क्या हमारी काउंसलेट्स में या हमारी एम्बेसीज़ में ये सहूलत मौजूद है कि अगर कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो पीपल कैन चैट अलॉन्ग विद द प्रोसेस ऑफ देयर डॉक्यूमेंटेशन? देखें, जो थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, जब आप ऑनलाइन नादरा कार्ड आप अपना अपडेट कर रहे हैं तो यू आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द सर्विस प्रोवाइडर हु इज बेस्ड इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान. जी सर. उसमें वो सिस्टम जो है फॉर सिक्योरिटी रीजंस वो किसी तीसरे सर्विस प्रोवाइडर या बीच में काउंसलेट को एक्सेस नहीं
नहीं मिलती। जी सर। उसकी प्राइमरी रीजन ये है कि एक बंदे ने ब्रैम्पटन में बैठ के अगर नादरा वेब पेज पे जाके वो चैट कर रहा है टेलीग्राम पे विद द क्लर्क ऑन द अदर साइड सिटिंग समवेयर इन पाकिस्तान, तो उसका काउंसलेट को इल्म नहीं होगा कि इस वक्त एज वी स्पीक नाउ there may be hundreds of people who are availing some passport or Nadra service with Pakistan. So you cannot interrupt somebody's communication क्योंकि 2-3 सर्विस प्रोवाइडर नहीं होंगे, और ऑनलाइन का पासपोर्ट और नादरा में दोनों में नादरा कार्ड जितने भी हैं उन सब में ये है कि इट इज़ द अल्टीमेट सर्विस प्रोवाइडर इज सिटिंग इन पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, नादरा का हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में है। जब आप ऑनलाइन टेलीग्राम पे चैट कर रहे होते हैं तो यू आर कम्युनिकेटिंग विद दैट गाय हु इज सिटिंग इन पाकिस्तान। इन बिटवीन नोबडी कैन इंटरप्ट इन द मिडल। सर आपका बहुत शुक्रिया। एनी अदर मैसेज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान लिविंग अब्रॉड इन कनाडा? देखें, आई एम लकी बीइंग वन ऑफ द फ्यू एम्बेसडर्स जितना साइजेबल डायस्पोरा है इन कनाडा, एंड आई एम आल्सो वेरी हैप्पी टू शेयर विद द कम्युनिटी के पाकिस्तानी डायस्पोरा की रेपुटेशन कनाडा में इज कि दे आर पीस लविंग, दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर प्रोफेशनल, दे आर कॉम्पिटेंट और मेहनत कश लोग हैं। तो अपनी शोहरत ये पॉजिटिव इंडिकेटर जितने भी हैं इनमें मजीद बेहतरी लाएं, इत्तेफाक से रहें, मोहब्बत से रहें और अपने फ्यूचर जनरेशन्स के फ्यूचर को मजीद तापनाक बनाने के लिए नॉट ओनली फॉर पर्सनल एंड फैमिली सक्सेस बट यू आल्सो हैव टू कंट्रीब्यूट टू कनाडा पाकिस्तान रिलेशन, यू आल्सो हैव टू कंट्रीब्यूट टू द कैनेडियन सोसाइटी। उसका जिस तरह इस प्रोग्राम से पहले प्रोग्राम आ रहा था कि भाई you have to follow the traffic rules, you have to upgrade all your, जिस तरह आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, गाड़ी के इंश्योरेंस है, घर के इंश्योरेंस है, आपके मेडिकल फाइल है, आपका अपना फैमिली लॉयर, आपका फैमिली फिजिशियन, आपका टैक्स रिटर्न का जो अकाउंटेंट है, तो प्लीज़ अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। ये आपका अडॉप्टेड कंट्री है, दिस इज़ अ वेरी बोल्ड डिसीजन और बहुत ही मतलब आप लोग अपना मुस्तकबिल ताबनाक करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो आई विश ऑल द सक्सेस टू द कम्युनिटी एंड आई विश दैट दे सक्सीड नॉट ओनली पर्सनली एंड इन देयर ओन फैमिलीज but they also contribute to bringing Pakistan, Canada political, economic, trade, investment, cultural, people-to-people relations more closer. जनाब एम्बेसडर साहब मोहम्मद सलीम साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आई लुक फॉरवर्ड एंड आई रिक्वेस्ट एंड आई लुक फॉरवर्ड वेलकमिंग यू हियर एट 7:70 AM ई आवाज़ रेडियो एंड टेलीविज़न पे। वी लुक फॉरवर्ड वेलकमिंग यू हियर। Inshallah. God bless you, sir. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much.